Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we were studying about the principles of Gandhism. In that, we complete a decentralized form of government, self-governing village in the structure composed of many villages. Then, we started with the decentralized economy. It means village-based economy, that is production and distribution must be centralized. गांधीज़म इज़ अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड कैपिटलिज्म. गांधी जी क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस विलेज बनेगी. तो ऑटोनोमस में क्या रहेगा? कॉटेज इंडस्ट्री रहेगी, पोट्री, क्लोथ वेविंग, कारपेंटर रहेंगी और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वहीं पे इंडस्ट्री में ही सब कुछ होगा. इंडस्ट्री में ही सब कुछ बनेगा और वहाँ पे ही लोकेलिटी में, उसी सेम लोकेलिटी में सब कुछ बेचा भी जाएगा. देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, Gandhism and property. Gandhism emphasized the importance of simple living and limited needs. On one hand, the ideology recognizes that moral development is not possible if basic needs are not met. On the other hand, the ideology is against the accumulation of unnecessary wealth and luxury. Gandhism believes that poverty leads to crime. Similarly, possessing excessive money also hinders moral and spiritual development. Then second point is the trustship. An individual must possess that amount of wealth that is essential to him. See, इंडिविजुअल के पास उतना ही पैसा रहना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है. एक्सेस प्रॉपर्टी मस्ट बी सैक्रिफाइस टू द सोसाइटी. गांधी prompts that the concept of trustship of poverty to meet the economic challenges. According to Gandhi, wealth is a social product. It is the contribution from many. The entire society has claim on it. The owner of property must recognize this claim. They must hold property as a trustee on behalf of many. They must utilize property to bring the best result for the society and not to simplify, maximize profit. Social needs are to be identified as one of the easily identifying the needs within a family. Man must rise to his best self and manage society without the need of the state or to dedicate. Gandhiji's view on property and trustship lead to the emergence of the ideas of बोधन, that is donation of land. जब ये बोधन मूवमेंट चल रहा था तब ग्रामधन मूवमेंट वॉज वन. टू फुलफिल द बोधन मूवमेंट, money was required for the purpose of seeds, cattle. Hence, Vinoba Bhave started the Sampatti Dhan, that is gift of wealth movement. Trustship would prevent capitalism, concentration of wealth in the hands of few. It will provide the rich a chance to realize and perform their moral duty towards mankind. Then, spiritualization of politics. Gandhi was the supporter of value-based politics. All political activities and the goals of politics should be for securing the justice, good and moral. Gandhism advocates that all political activities, political leaders and political institutions should function in an ethical manner. Their ends and means should be good and pure. For instance, the government can impose reasonable tax in a constitutional manner on earning member of society so that financial benefit can be granted to the poor and needy. Then moving towards the next point, that is the Sarvodaya. The word Sarvodaya is a combination of two words. Sarva means all and Uday means rise. Sarvodaya means the rise or upliftment of all. In Gandhism, Sarvodaya is an attitude which leads an individual to think those thoughts, performance and those actions and speak those words which result in the upliftment of all mankind. Sarvodaya seeks to do well to all and harm to none, living for the sake of others. It believes that the good of all can be achieved through good of each. Sarvodaya is a type of socialism which emphasizes the need for the development of the community as a whole rather than the rise of individual at the cost of community. Gandhiji's Sarvodaya has its root in the Vedantic concept of the spiritual unity of existence and the Gita Buddhist concept of Sarva
Bhuhita or the good of all living beings. Principle of Sarvodaya is developed by Jay Prakash Narayan. Sarvodaya is an ideology that attempts to reconstruct society on the basis of love and mutual trust between individual and social class. Now moving towards the next point, स्वदेशी. See, जब मैं स्वदेशी की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो थॉट आ ही जाएगा. क्या थॉट आया होगा जब मैं स्वदेशी की बात कर रही हूँ तो? हाँ, वॉट हैज़ कम कि बाबा जो गुड्स अपने इंडिया में बनते हैं वही अपने को यूज़ करने हैं. दैट इज़ नथिंग बट अ स्वदेशी बोल लेते हैं, राइट. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गांधीज़म दैट सीक्स टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी. सी, ये स्वदेशी जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गांधीज़म दैट सीक टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी. ये गांधी जी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रिंसिपल है जिससे क्या होता है, अपनी इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव होती है. Swadeshi was popularized during the British rule at a time when British economic practices had crimped the Indian economy. See, Swadeshi was popularized during the British rule. See, स्वदेशी कब पॉपुलराइज हुआ था, स्वदेशी को इम्पोर्टेंस कब मिला था, जब ब्रिटिश रूल था. उस वक्त व्हेन ब्रिटिश इकोनॉमी प्रैक्टिसेस हैड क्रिप्ड द इंडियन इकोनॉमी, जब ब्रिटिशर्स ने गलत तरीके से अपना इंडियन इकोनॉमी पूरा ख़राब कर लिया था. द ब्रिटिश वुड प्रोक्यूर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड शिप इट टू इंग्लैंड वेयर देयर फैक्ट्रीज वुड यूज़ द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स. सी, अपने को ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से पता है. ब्रिटिश क्या करते थे, रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे. हाँ, जैसे कि वो लोग बोलते थे कि बाबा इंडिगो क्रॉप प्रोड्यूस करो, कॉटन क्रॉप प्रोड्यूस करो. इनफैक्ट फार्मर को फोर्सफुली करवाते थे सारा काम, राइट. फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे और वो जब कॉटन आता था तो वो शिप के थ्रू इंग्लैंड चला जाता था. और इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो क्या है, रॉ मटेरियल अच्छे से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, जल्दी जल्दी मिल रहा है, तो क्या है, वहाँ पे फटाफट वो प्रोसेस होता था एंड वी यूज टू गेट द फिनिश प्रोडक्ट. ये और ये फिनिश प्रोडक्ट क्या करते थे, वापस इंडिया में लाया जाता था. और इंडिया में जो एक शर्ट बनाने के लिए आपको 4 दिन लगते हैं, वही इंग्लैंड, और उसका रेट भी 500 रुपया रहता होगा सपोज एग्जाम्पल, ओके. तो वही फिनिश्ड, वही शर्ट इंग्लैंड से आता है तो उसका कीमत रहता है 250-300 रुपीज़, और क्वालिटी वाइज अपने इंडिया से भी बहुत अच्छा. तो क्या हुआ, लोग वही जो इंग्लैंड से आता है वही परचेस करने लगे. दिस गुड्स वुड देन बी शिप्ड बैक टू इंडिया टू बी सोल्ड हियर एट वेरी हाई प्राइस. सी, अभी उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इधर सस्ते में रॉ मटेरियल मिल गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मशीन, वो फटाफट प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, उनका सब सस्ते में हो गया, राइट. और जब बेचने को जाते हैं, जब वो शर्ट का एक्चुअल कीमत उनका 80 रुपीज़ में सब कुछ चला, 100 रुपीज़ में पूरा शर्ट हो गया, तो बेचते वो को कितने में बेच रहे हैं, 300 रुपीज़ में बेच रहे हैं यहाँ पे, राइट. बट इंडिया में जो शर्ट बन रहा है वो 400 रुपीज़ में आ रहा है. वो ज़्यादा पैसे, तो क्या है, अपने को तो सस्ते में मिल रहा है बट उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है इंग्लैंड में, तो ये वापस इंडिया में आता था और ज़्यादा प्राइस में बिका जाता था. ईयर्स ऑफ सच प्रैक्टिसेस ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया. सी, काफ़ी सालों तक यही प्रैक्टिस चलती रही और इंडिया का सारा वेल्थ लेके चले गए. इंडियाज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एनेबल्ड द ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया. सी, अभी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. तो ब्रिटिशर्स ने ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी हालत ख़राब करके क्या हो रहा था, वो तो और पावरफुल बन गए थे और सारा पॉलिटिकल पावर भी उनके पास ही आ गया था. स्वदेशी आइडेंटिफाइड द रीज़न वाई द ब्रिटिश वेयर इन इंडिया वॉज देयर वेल्थ. अब स्वदेशी से पता चला, रीज़न पता चला, ये ब्रिटिश इंडिया में आए और इतने पैसे वाले क्यों हो गए, कैसे हो रहे. वंस द सोर्स ऑफ इंडियन वेल्थ वॉज कट ऑफ द ब्रिटिश वुड लीव इंडिया. सी, जब ये ब्रिटिश को जहाँ से पैसा मिल रहा है वही सोर्स अपन कट कर देंगे तो क्या है, ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा. अभी उनको अपने यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है इंग्लैंड में, तो क्या है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. अब ये रॉ मटेरियल देना बंद करेंगे तो क्या हो गया,
अपने आप उनका धीरे धीरे इकोनॉमिक लो हो जाएगा. The British would leave India. Hence, the Swadeshi movement urged India not to purchase foreign goods. See, अब स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ? अब ये स्वदेशी मूवमेंट किस लिए चालू किया? ताकि वी इंडियंस डू नॉट परचेस एनी ऑफ द फॉरेन गुड्स. अपन फॉरेन गुड्स कुछ भी ना परचेस करें, कुछ भी ना यूज़ करें. Indians were urged to wear only khadi that had been spun at home with cotton that had been प्रोड्यूस फ्रॉम द इंडियन पीनेट. अभी गांधी जी क्या बोल रहे हैं? कोई भी फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करेगा. आप इंडियंस विल वेयर ओनली खादी. सिर्फ अपन खादी पहनेंगे, वो भी अपन अपने घर पे ही बनाएंगे. विथ कॉटन स्पन के साथ अपन अपने घर पे ही बनाएंगे और उसके लिए थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल लगता है वो अपन इंडियन पीसेंट से ही लेंगे. ह्यूज बॉनफायर्स वेर टिल्ट ऑन द स्ट्रीट and British goods were burned in view of British officers. See, बड़े बड़े बॉनफायर्स बनाए थे हाँ स्ट्रीट पे, और ब्रिटिशर्स के सारे गुड्स वहाँ पे बर्न कर दिए थे. लाइक ब्रिटिशर्स के गुड्स की अगर दुकान रहेगी जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स गुड बन रहे हैं और मिलते हैं, तो वो दुकान भी जला दी थी. और ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने ही चल रहा था. अब मालूम है यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का ऑफिसर है, तो उनके दुकान के सामने ही बॉनफायर बनाते थे, उनके गुड्स बर्न कर दिया जाता था. Thus, Gandhiwadis did not preach Swadeshi, they performed it. See, उन्होंने सिर्फ गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? सिर्फ बोला ही नहीं कि स्वदेशी अपनाओ, बट उन्होंने करके भी दिखाया. The success of Swadeshi in crippling British economy lead to the agreement that British Empire was brought down by चरखा. See, अब सक्सेसफुल हो गया. अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था वो क्या हो गया? वो सक्सेसफुल हो गया, राइट. और ब्रिटिश लोग के क्या हो गए? अपने यहाँ पे चरखा वगैरह यूज़ करना चालू हो गया. अपने इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा स्कोप मिलने लग गया. द सक्सेस ऑफ स्वदेशी इन क्रिपलिंग ब्रिटिश इकोनॉमी लेड टू द एग्रीमेंट दैट द ब्रिटिश एम्पायर वॉज बॉट डाउन बाय चरखा. अहिंसा एंड ट्रस्ट. ट्रस्ट मीन्स रियल एविडेंस. अहिंसा एंड ट्रस्ट. ट्रस्ट मीन्स क्या है? रियल एविडेंस है. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. अहिंसा एंड ट्रूथ बोल रहे. ट्रूथ मतलब क्या है? सच एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस. जो सही में जो हो रहा है वो सच्चाई बोलो. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस. टू अचीव ट्रूथ दैट इज रियल एग्जिस्टेंस मीन्स शुड बी नॉन वायलेंस. सी, अगर आपको सच्चाई की राह पे चलना है और अगर आपको वो सच्चाई पर राह पे चल के सच्चाई तक पहुंचना है, तो वो पहुंचने का एक तरीका है नॉन वायलेंस. It refers a threefold form of ahimsa. See, it refers a threefold forms of ahimsa. अब threefold paths क्या है यहाँ पे? Non violence of thoughts, that is good intentions. See, non violence of thoughts. अपनी सोच गलत दिशा में या गलत राह में जाने नहीं देनी चाहिए. That is अपने इंटेंशन सही रहने चाहिए. नॉन वायलेंस ऑफ थॉट मीन्स दैट इज गुड इंटेंशन. नॉन वायलेंस ऑफ स्पीच, नॉट टू अब्यूज और हर्ट. नॉन वायलेंस ऑफ स्पीच, किसी को इतना कड़वा मत बोलो कि दूसरों, और ना ही किसी को कोसो, सो दैट यू डोंट हर्ट एनी वन. दैट इज नॉन वायलेंस ऑफ डीड, दैट इज अवॉइडिंग इंजूरी. नॉन वायलेंस ऑफ डीड मतलब क्या है? अवॉइड इंजूरी. किसी को भी हार्म नहीं करना है आपको, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है. आपकी वजह से किसी को भी एक खरोच भी ना आए, इस बात का ध्यान रखो. सी, थ्री फोल्ड फॉर्म्स ऑफ अहिंसा क्या है? गुड इंटेंशन, नॉट टू अब्यूज और हर्ट, देन अवॉइडिंग इंजूरी. अहिंसा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. सी, अहिंसा क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. गांधी जी अप्लाइड इट to solve a practical problem that is in the form of सत्याग्रह. See, गांधी जी applied it, गांधी जी ने ये अप्लाई किया to solve the practical problem that is in the form of सत्याग्रह. He also applied the idea to the economic and political aspect of the citizens' life. See, उन्होंने ये आइडिया अप्लाई की for the economic and political aspect of the citizen life. Gandhi proved that ahimsa is the only solution way to bring about a successful revolution. See,
गांधी जी ने बोला ये अहिंसा एक ही सोल्यूशन है, सो दैट वी ब्रिंग अबाउट अ सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन। अगर आपको रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल करना है तो अहिंसा एक ही आपके पास सोल्यूशन है, एक ही तरीका है। द चेंज ब्रॉट अबाउट बाय सच अ रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन अहिंसा possess a degree of permanence when compared with the changes brought about by bloody revolution of Russia and France. See, the changes brought about by such a revolution. See, अब ये जो changes आए revolution के कारण, हाँ, it is based on अहिंसा, a degree of permanence when compared with change brought by the bloody revolution of Russia and France. See, अगर आप जो रिवॉल्यूशन रशिया एंड फ्रांस में हुआ उसके कंपैरिजन में क्या है, ये अहिंसा बहुत अच्छा तरीका है और एक बहुत अच्छा रिजोल्यूशन करने का भी एक तरीका है। देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, दैट वुड बी द ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस। ट्रस्ट मतलब क्या, ट्रस्ट मतलब देखा रियल एग्जिस्टेंस, और नॉन वायलेंस क्या है, अपने को नॉन वायलेंस का मीनिंग तो बहुत अच्छे से मालूम है, मतलब प्यार से जो भी करना है प्यार से करो। जैसे गांधी जी बोलते हैं ना, किसी ने आपके एक गाल पे चाटा मारा तो तुरंत दूसरा गाल आगे कर दो, बस वही है नॉन वायलेंस। बट आप मत मारना किसी को, इसको क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस। देन ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस। गांधी wanted to change the individual and thought him to change the society. गांधी जी को पहले क्या है, इंसान को बदलना है, इंसान की सोच को बदलना है, उसके बाद धीरे धीरे ही वांट्स टू चेंज द सोसाइटी। इंडिविजुअल वुड इम्बाइबल न्यू वैल्यूज फॉर दिस पर्पस। उसके लिए क्या करना है, इंडिविजुअल को क्या है, इंडिविजुअल में अपने को नए नए वैल्यूज डालने पड़ेंगे। लाइक इंडिविजुअल ने नए नए वैल्यूज यूज करने चाहिए, नए नए वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपका कुछ अच्छे से हो पाएगा। Then they should know the purpose of life. See, हर एक इंडिविजुअल को पर्पस ऑफ लाइफ पता चलना चाहिए कि लाइक मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, इन सब का रीज़न पता होना चाहिए ना इंडिविजुअल को, इन सब का रीज़न पता होना चाहिए, तब भी वो सुधरेगा, तब भी वो अच्छा काम करेगा। गांधी held that the purpose of life is to realize truth. See, गांधी जी क्या बोलते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इज टू रियलाइज द ट्रूथ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज द ट्रूथ। नॉन वायलेंस इज द मीन्स फॉर दिस। सी, नॉन वायलेंस क्या है, ये एक तरीका है उसका। नॉन वायलेंस इज जस्ट अ मीन्स टू इट। नॉन वायलेंस मीन्स डिटैच्ड सेल्फलेस लव फॉर ऑल। सी, नॉन वायलेंस क्या है, नॉन वायलेंस मीन्स डिटैच्ड सेल्फलेस लव फॉर ऑल, मतलब बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के प्यार करना। सी, आज अपन अपने बच्चों को कैसे विद टर्म्स एंड कंडीशन प्यार करते हैं क्या, बाबा तू बड़े होके पैसा कमा के मेरा ध्यान रखेगा इसलिए मैं आज तेरे को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, ऐसे बोलते हैं क्या अपन, नहीं। वी लव बिकॉज दे आर योर चाइल्ड। सेल्फलेस लव रहता है ना एक माँ का अपने बच्चों के प्रति, सेम थिंग नॉन वायलेंस मीन्स डिटैचमेंट, सेल्फलेसनेस एंड लव फॉर ऑल। ऑल लाइफ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंगली। सी, अपना लाइफ कैसे उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड। अपने सेंसेस पे अपने को कंट्रोल रहना चाहिए। अपने 5 सेंसेस क्या है, डू यू नो योर 5 सेंसेस? आइज, नोज, ईयर्स, माउथ, दैट इज टंग एंड देन द स्किन। लाइक अपने आँखों पे, अपने मुंह पे, अपने कान पे अपने को कंट्रोल रहना चाहिए। दैट इज सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड। लाइफ शुड बी कंसिडर्ड एट वंस। सी, ज़िंदगी अपने को बार बार नहीं मिलती, आज अपने को ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी अपने को अच्छे से बितानी है। The 11 vows preached by Gandhi were for this purpose. See, गांधी जी ने 11 vows बोले हैं, हाँ, जो गांधी जी ने बोले हैं इट इज़ फॉर दिस पर्पस। दे ऑल्सो गिव गाइडलाइंस फॉर पर्सनल कंडक्ट, और ये अपने को गाइडलाइंस भी देते हैं फॉर पर्सनल कंडक्ट के लिए। फॉर गांधी ट्रूथ इज़ द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। सी, गांधी जी के लिए क्या है, ट्रूथ इज़ द बेसिक फॉर एवरीथिंग, इट इज़ द हाईएस्ट धर्मा। सी, सच्चाई ये एक बेसिक है हर चीज़ के लिए,
और ये सबसे बड़ा धर्म है। इट इज़ द लॉ ऑफ आवर बीइंग, ये अपना ज़िंदगी का उसूल रहना चाहिए, एक लॉ रहना चाहिए। ट्रुथ मीन्स सत्या, सत्या इज टू ड्राइव फ्रॉम सॉल्ट, दैट इज एक्सिस्टेंस। सी, ट्रुथ मीन्स सत्या, सत्या इज द ड्राइव फ्रॉम सत, दैट इज एक्सिस्टेंस, नॉट सॉल्ट, सत, सॉरी। सच्चाई, ट्रुथ मीन्स सत्या, और सत्या कहाँ से आया ये वर्ड? फ्रॉम सत, दैट इज एग्जिस्टेंस। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज contained in truth. See, everything that exists is contained in truth. Knowledge flow from trust. See, knowledge कहाँ से आता है? सच्चाई से आता है। And knowledge lead to bliss, and knowledge will lead to bliss. Knowledge and bliss are thus contained in truth. Knowledge lead to bliss, and knowledge and bliss are thus contained in truth. God is considered as सत चित्त आनंदा। गॉड को क्या बोल रहे हैं अपन? गॉड इज कंसिडर्ड हियर एज अ सतचित आनंदा, दैट इज एम्बॉडमेंट ऑफ ट्रूथ, नॉलेज एंड ब्लिस। गॉड इज कंसिडर्ड एज सतचित आनंदा, जो बना है ट्रूथ, नॉलेज और ब्लिस से। गांधी देयरफॉर इक्वेटेड ट्रूथ विद गॉड। गांधी जी ने सच्चाई की विद गॉड बोला, ट्रूथ विद गॉड, इक्वेटेड, सच्चाई भगवान के साथ कंपेयर की है। ट्रूथ is a matter of experiences. Truth क्या है? Truth is nothing but it is a matter of experiences. It is what the voice within tells us. Truth क्या है? ये अपना अंदर का आवाज़ है। Speaking truth is not sufficient. See, सिर्फ सच बोलना sufficient है क्या? नहीं। सिर्फ सच बोला तो हो क्या? क्या नहीं। One should be truthful in word, thoughts and deed. See, क्या रहना चाहिए? अपन वन शुड बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डिड। ट्रूथ इज द बेसिक ऑफ मॉरलिटी। ट्रूथ क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑफ मॉरलिटी। बिना सत्य के, बिना सच्चाई के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सो ट्रूथ इज द बेसिक ऑफ मॉरलिटी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, truth and non-violence constitute the kernel of Gandhi's philosophy. According to Gandhi जी क्या है? Truth and non-violence constitute the kernel of Gandhi's philosophy. He said that truth stands for reality. गांधी जी क्या बोलते हैं? Truth stands for reality. But truth according to Gandhi, we do not mean the character or of preposition which is either truth or false. गांधी जी क्या बोलते हैं यहाँ पे? Now what he is saying कि बाबा ये जो ट्रूथ है, अकॉर्डिंग टू गांधी वी डू नॉट मीन द कैरेक्टर ऑफ प्रीपोजिशन। सी, जब अपन ट्रूथ की बात कर रहे हैं, बट बाय ट्रूथ अकॉर्डिंग टू गांधी वी डू नॉट मीन द कैरेक्टर ऑफ प्रीपोजिशन विच इज नाइदर ट्रू और फॉल्स। Gandhi sometimes described truth as existence, consciousness and bliss. Gandhi sometimes described truth. गांधी जी कभी कभार ट्रूथ को क्या बोलते हैं? As existence, consciousness and bliss. That सत्य चित्त आनंदा. At first, Gandhi to say God is truth. पहले गांधी जी क्या बोलते थे? At first, Gandhi used to say God is truth. But later on him converted ट्रूथ इज गॉड। पहले सच भगवान, ये सच्चाई बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? सच्चाई ही भगवान है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गांधी, ट्रस्ट इज गॉड एंड सत्याग्रह इज आग्रह ऑफ सी। देयरफॉर गांधी जी क्या बोलते हैं? ट्रस्ट इज गॉड एंड सत्याग्रह इज आग्रह ऑफ, एंड thus इट मीन्स होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ। एंड thus इट इज क्या बोलते हैं? इट इज thus होल्डिंग फास्ट ऑफ ट्रूथ। गांधी एक्सप्लेन द टर्म सत्याग्रह फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट। गांधी जी ने सत्याग्रह अपने को अलग अलग व्यू पॉइंट से बोला है। सत्याग्रह इज नॉट वेपन ऑफ द वीक, द कॉवर्ड, द अनआर्म्ड एंड द हेल्पलेस। सत्याग्रह क्या है? ये एक शस्त्र नहीं है। जो वीक है, अननेम्ड है, हेल्पलेस है, उनके लिए एक शस्त्र ही नहीं है। सिर्फ शस्त्र मत बोलो आप उसको,
इट इज़ अ वेपन ऑफ मॉरलिटी, वेलिगेंट एंड द एक्टिव। सी, ये जो वीक है, हाँ, जो अनआर्म्ड है, हेल्पलेस है, उनके लिए एक वेपन नहीं है, बट ये एक वेपन ऑफ मॉरलिटी, वेलिगेंट एंड द एक्टिव है। सत्याग्रह इज नॉट द ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ इविल बाय इविल। सत्याग्रह क्या है? इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ इविल बाय इविल, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ इविल बाय इट्स अपोजिट, दैट इज बाय गुड। सी, वो लोग सत्याग्रह को क्या बोल रहे हैं? सत्याग्रह इज नॉट द ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ इविल बाय इविल, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ इविल बाय इट्स अपोजिट, दैट इज गुड। सी, जो बुरा है उसके अगेंस्ट खड़े रहो और उसका डट के मुकाबला करो, बट मुकाबला करना कैसे है? सही तरीके से, सही अच्छे से करो, मतलब गलत तरीका, किसी को हार्म करके, किसी को नुकसान करके मत करो। विल एंड आवर टॉपिक या इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू दिस ट्रुथ पार्ट, ओके, and then we can start with the ahimsa or non-violence also. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.